students, I hope you understand what do you mean by pH. So let us solve a question and make it clear before going to the next topic, that is importance of pH in everyday life. Okay, so I am giving you a question on the basis of pH. I am giving you question is, which is more basic? Which is more basic, or you can say which is more alkaline? Which is more basic, or you can say alkaline? A solution of pH 12 or a solution of pH 9. Which is more alkaline? Alkaline means basic. What is the basic pH value range? That is from 7.1 to 14, or you can make sure over here also you can write less than greater than 7, that means 7.1 to 14. Less than 7 means 0 to 6.9. okay, acidic range. So which is more basic, alkaline of a solution, pH of 12 or pH of 9? Obviously which is more basic, more the pH value, more is the basic range. So pH 12 is more basic. That is, more the pH value, more is the basic character. More is the basic character. So is this thing clear to you? How to find out whether the solution is acidic or basic on the basis of pH value. Okay. Now let us move to the topic, that is importance of pH in our everyday life. So in your textbook you can see importance of pH in everyday life, that is given to you, and questions are asked from this topic also. Okay. So that is in your page number 26, importance of pH in our everyday life. Where the very first is pH in our soil. pH, importance of pH in everyday. First you will see soil pH and plant growth. What is the importance of pH in our soil growth, और you can say plant के growth में soil का pH कैसे matter करता है? First is soil pH and plant growth. Now we know that growth of the plants in a particular soil is related with its pH. Okay, actually different types of plants requires different pH range for their growth. Some requires alkaline pH and some plants require your acidic pH. Okay, now if some plants which required your basic pH, or you can say some sort of neutral pH, अगर उस प्लांट का pH एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया तो क्या वो प्लांट ग्रो करेगा? नहीं, वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा. सो आप अगर वो प्लांट को बेसिक कंडीशन चाहिए बट सॉइल एसिडिक हो चुका है, तो हम उसको बेसिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय एडिंग सम थिंग दैट इज योर सम बेसिक कैरेक्टर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड कर सकते हो, आप कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर सकते हो, या फिर चॉक का पाउडर ऐड कर सकते हो, क्योंकि चॉक पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. दिस ऑल आर बेसिक इन नेचर. और अगर आप सॉइल में बेस ऐड कर दोगे तो वो क्या कर देगा? उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और प्लांट के ग्रोथ को क्या करेगा? एनहेंस करेगा. समझ में आया? पीएच कैसे करेंगे, थियोरी पार्ट है आपका. सो सम प्लांट्स रिक्वायर्ड एसिडिक पीएच, सम प्लांट्स रिक्वायर्ड बेसिक पीएच. अगर प्लांट को बेसिक पीएच चाहिए और वो सॉइल एसिडिक है, आप चेक करोगे उसको, अगर वो एसिडिक है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हो या कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हो, या फिर आप इधर से और सिंपल लाइम ऐड कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हो और उसके पीएच को क्या कर सकते हो? न्यूट्रलाइज कर सकते हो. ठीक है. और अगर किसी का सॉइल का पीएच बेसिक हो गया है बहुत ज्यादा, बट हमें उसके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? एसिडिक चाहिए, तो हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? बेस ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सो इफ सॉइल इज एसिडिक, so what we can add? We can add base to it. That base you can add as calcium hydroxide. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो उसमें, कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हो, या फिर आप चॉक पाउडर डाल सकते हो. ठीक है, क्योंकि चॉक पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. सो दैट मेक्स योर सॉइल पीएच बेसिक, और यू कैन से न्यूट्रलाइज. समझ में आया? ओके. और अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया है तो उसमें क्या कर सकते हैं? एसिड, बाय एडिंग सम कंपोस्ट और मैन्योर. ठीक है.
Okay, this is the pH you can make, and the pH of the soil is also affected. And next most reason for the pH of the soil to get affected is acid rain also. pH of soil किससे उधर से affect भी हो सकता है, it can get affect due to the acid rain also. ठीक है. And what is the pH of acid rain? pH of acid rain is your less than 5.6. pH of acid rain क्या होता है? Less than 5.6. Again, this acid rain can cause harm to animals also because skin cancer of this. ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्किन कैंसर हो सकता है. पीएच अगर कम हो गया, पानी पड़ रहा है, एसिड हो गया, प्लांट्स को इफेक्ट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके एसेंशियल ट्रीटमेंट ले सकते हैं. समझ में आया पीएच का? फर्स्ट सॉइल पीएच के प्लांट ग्रोथ को कैसे इफेक्ट कर रहा है. ओके. सेकेंड, in our digestive system. Main pH in our digestive system. In our digestive system. As we all know, our digestive system consists of what? Hydrochloric acid produce होता है हमारे स्टमक में. As we know, HCl is produced in our stomach. In our stomach, which helps in digestion of food, which helps in digestion of food. Now, if this HCl concentration is increased, if HCl is released in excess, it may cause indigestion. indigestion हो सकता है आपको, उसकी वजह से पेन होगा, इरिटेशन होगा. ठीक है. सो उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? हाउ टू न्यूट्रलाइज? बाय टेकिंग एंटासिड्स. एंड एंटासिड्स आर हैविंग बेस कंटेंट. एंटासिड्स में क्या होता है? बेस इन, दे आर बेसिक इन नेचर. एंटासिड्स आर समवॉट बेसिक इन नेचर. तो कॉमनली अभी एंटासिड्स बोला तो सबके माइंड में यही आएगा, इनो, गैसोलीन एंड ऑल थिंग्स. तो इनो ये सब उस ब्रांड के नेम है, वो एंटासिड्स पर्टिकुलर नहीं है. केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल्स नेम्स पढ़ने पड़ेंगे. सो एंटासिड्स, अगर आप इनो ये सब का कॉम्पोजिशन देखोगे, सो उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन होता है. आज तक कभी भी किसी ने, हम सारे टूथपेस्ट, दिस ऑल द थिंग्स वी आर यूजिंग, कभी भी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा है? देखते हो कभी भी केमिकल कॉम्पोजिशन? नो, नेवर. सो स्टार्ट सीइंग द केमिकल कॉम्पोजिशन कि किस किस केमिकल्स का बना है, कौन से केमिकल्स आप खा रहे हो डे टू डे लाइफ में. देखो तो सही. एंटासिड्स, इनो हो गया, ले लिया, देखा नहीं कि उसमें क्या है. सो एंटासिड्स आर बेसिक इन नेचर एंड दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सबसे एक अच्छा एंटी एसिड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. नाउ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मिल्क में मैग्नीशियम डाला है, ऐसा नहीं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द केमिकल नेम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. पूछा जाता है एमसीक्यू फॉर्म में, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियस केमिकल नेम? सो मिल्क ऑफ मैग्नीशियस केमिकल नेम इज व्हाट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और some of the antacids also consist your एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कंसिस्ट कर सकते हैं. क्या होता है आपके एंटासिड्स में? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है. या फिर आप यूज कर सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो. अगेन इट इज अ बेस. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम इस चैप्टर में आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे. commonly known as your baking powder, or you can say commonly known as your baking soda. So these are the antacids which we use to neutralize the excess amount of HCl produced in our body and make your pH level back to normal. So समझ में आया कैसे pH हमारे digestive system पे भी important है. Okay, next importance of pH is your tooth decay. आपके दांत जो सड़ते हैं वो क्यों सड़ते हैं? ऑटोमेटिकली सड़ने लगते हैं क्या? नहीं. देयर मस्ट बी सम रीजन. अगेन द रीजन इज व्हाट? द रीजन इज पीएच. आप अपने माउथ का पीएच, टीथ का पीएच क्या कर देते हो? बिगाड़ देते हो. जितना होना चाहिए उतना नहीं रखते हो, उससे ज्यादा कर देते हो या कम कर देते हो. ठीक है. So you know tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. ये आपको रेंज याद रखना है. एसिड रेन की रेंज क्या थी? लोअर देन 5.6. टूथ डिके का रेंज क्या है? टूथ डिके कब स्टार्ट होगा? टूथ डिके स्टार्ट्स when the pH of the mouth is
tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. Remember, it is lower than 5.5, then your tooth decay starts. And our tooth enamel, जो हमारे white color का tooth enamel बना हुआ है, that is made up of, tooth enamel is made up of कैल्शियम फॉस्फेट. किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. कैल्शियम फॉस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस in our body. Okay, it does not dissolve in water, but it gets corroded when the pH of the mouth is below 5.5. ठीक है. As you know, millions and trillions of bacteria is present near the mouth. Okay, so क्या होता है जब आप शुगर कंटेनिंग फूड्स को खाते हो, ठीक है, so क्या हो जाता है, वो शुगर कंटेनिंग फूड्स आपके माउथ में ही रह जाते हैं. वो शुगर कंटेनिंग फूड क्या करेंगे? एसिड रिलीज करेंगे. ठीक है. अब आपके सलाइवा क्या काम करता है? सलाइवरी ग्लैंड से अल्कलाइन पीएच रिलीज करता है एंड दैट मेक्स योर सम सॉर्ट ऑफ माउथ न्यूट्रलाइज करता है. बट अगर ज्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो गया तो सलाइवा भी उसको रिमूव नहीं कर सकता. तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट विच कंसिस्ट बेस. टूथपेस्ट में क्या होता है आपका? बेस. इसलिए आपको बोला जाता है ना कि टूथ को 2 टाइम वॉश करो. बिफोर गोइंग टू बेड यू शुड वॉश इट. क्योंकि क्या होगा, अगर शुगर कंटेंट आपने खाया है पूरे दिन में तो रात को क्या होगा, आप उसको ब्रश कर दोगे तो वो एसिडिक पीएच आप अपने टूथ में क्रिएट करने नहीं दोगे. तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा. एंड दिस वे यू कैन प्रिवेंट योर टूथ डिके. सो हाउ कैन यू प्रिवेंट टूथ डिके? बाय क्लीनिंग the teeth with a good quality of toothpaste. And how can you prevent indigestion by taking a good antacids. ठीक है, समझ में आया? लास्ट इज योर फोर्थ इज एनिमल्स की वजह से. व्हाट हैपेंस अगर एनिमल्स में सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, self defense by animals and plants. How can plants से हम self defense कर सकते हैं? That we will see from plants through chemicals welfare. So now just pay attention. Honey bee काटता है हमें, ठीक है, वो स्टिंग छोड़ता है. It bites you. So when honey bee bites you, you feel some sort of irritation. Yes, you feel some sort of irritation. अब वो पेन और इरिटेशन क्यों होती है? या फिर कभी वो जो लाल चींटी होती है वो आपको काटती है तो आपको तुरंत वहां खुजलाना चालू कर देते हो. वाई? क्यों वो पेन या इरिटेशन क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड इंजेक्टेड इन योर बॉडी और योर स्किन बाय द बी और एंट. ठीक है, बिकॉज द स्टिंग ऑफ हनी बी or ant consist which acid? Remember this, which acid? Methanoic acid or also known as formic acid. क्या बोला जाता है? मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड. फॉर्मूला इज HCOOH फॉर्मूला है उसका. ठीक है, ये होता है उनके एंड स्टिंग में. सो वो क्या करते हैं? बाइट करते हैं ना, तो वो ये इंजेक्ट कर देते हैं आपकी बॉडी में. सो हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस? बाय एडिंग अ बेस. अगेन एसिड रिलीज कर रहा है ना, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कैसे होगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा बेस डालोगे तो न्यूट्रल के पास पीएच आएगा ना, उसका H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. सो व्हाट यू एड ओवर हियर, हाउ टू गेट न्यूट्रलाइज बाय इट? प्रिवेंटेड बाय न्यूट्रलाइजिंग इट. ठीक है, and relief, that is a solution of applying a solution of mild base. Now which is the mild base? Best mild base तुरंत घर पे जो मिलेगा वो होगा आपका बेकिंग सोडा. Best mild base is baking soda. We will study, as I said, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कॉमन नेम है बेकिंग सोडा. सुनते हो ना, मम्मी बोलती है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालो,
and common chemical name is sodium hydrogen carbonate. So when you apply it, तो वो क्या करता है, some sort of relief देता है, क्योंकि वो बेसिक होता है नेचर में, तो एसिड के कंटेंट को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करता है. तो ये था एनिमल के केस में. अब प्लांट्स वाला कैसे, कौन सा प्लांट्स आपको एसिड रिलीज करता है और इरिटेशन कॉज करता है? दैट प्लांट इज नोन एज निटिल प्लांट. आपके टेक्स्ट बुक में दैट इज ऑन पेज नंबर 28, ऊपर येलो का एक्टिविटी जैसा दिया है, डू यू नो, वहां पे निटिल लीव्स बनाए हुए. ठीक है. निटिल प्लांट्स हैज स्टिंगिंग हेयर्स. उसमें क्या होते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स. अगेन दे ऑल्सो कंसिस्ट दिस एसिड ओनली. मिथेनोइक एसिड ही होता है उसमें भी. कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड. तो वो मिथेनोइक एसिड को जब आप उसको टच करते हो तो वो एसिड आपको एक्सीडेंटली वो हो जाता है और वो रिलीज सेम पेन कॉज करता है. इसलिए आपको क्या होता है, इरिटेशन या फिर पेन होना स्टार्ट करता है. अगेन आप इसमें तुरंत क्या लगाओगे, कोई बेस लगाओगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. तो इज दिस थिंग क्लियर टू यू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ? ओके, सो I will give you the paper, practice paper today, so you have to solve it. Thank you.